خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے نا، خان صاحب تو وہ بہادر سچے اور کھرے لیڈر ہے کہ اساسینیشن اٹیمپٹ کے بعد بھی عوام کے اندر ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم حکومت کر لے، جتنا مرضی بھاگ لے، پاکستان کا یہ نقصان کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کا یہ کوئی نقصان نہیں کرے۔ خان صاحب لگاتار اپنے سیاسی مفاد پر ملکی مفاد کو فوقیت دے رہے ہیں۔ نہ میں پرچی کے ذریعے آئی ہوں، نہ میں نازیبا ویڈیو کر کے بلیک میل کر کے آئی ہوئی ہوں۔ میں تو ظاہری بات ہے خان صاحب کی ٹکٹ کے اوپر عوام کی پلس کے ذریعے 80,000 ووٹ لے کے ویڈیوز کو ہرا کے آئی ہوں۔ کسی نے اس کو ٹینٹ دیا، کسی نے اس کو راشن دیا، کسی نے ریہیبلیٹیشن کی۔ عوام تو ابھی بھی سندھ کے اندر مر رہی ہے۔ قومی اسمبلی سے استعفے دیے اور گورنمنٹ نے اس کا ایک ہیک ڈھونڈ لیا۔ یہ ووٹ کے ذریعے تو آئے نہیں ہے، بند دروازوں کے پیچھے رجیم چینج کے ذریعے ضمیر فروشی کر کے کسی کا لائقار بن کے اس وقت پاکستان کے اوپر مسلط ہیں۔ لوگوں کی نظر مہنگائی کی طرف نہ جائے، انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کی طرف نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ ناظرین اکرام، ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ملکی سیاستدانوں کی جانب سے بڑے پن کا مظاہرہ کیا جائے۔ افراتفری اور انتشار ملک کو ڈیفالٹ کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی، لیکن آج خان صاحب نے آ کر اس کی تردید کر دی ہے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ میری بات کو شاید غلط انداز میں لیا گیا، ان سے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب ملک میں معاشی بحران سر اٹھاتا تھا، مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ ریلیف نام کی کوئی بھی چیز کسی بھی صورت میں عوام کو میسر نہیں ہے۔ اسی سب پر بات کریں گے، لیکن پہلے ویکلی راؤنڈ اپ۔ معاشی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام بھی عروج پر۔ عمران خان کی اسمبلی تحلیل کرنے کے بیان کے بعد امپورٹڈ سرکار بند گلی میں داخل۔ نئی فوجی قیادت نے کمان سنبھال لی، پاکستان کی تاریخ کا نیا دور شروع۔ فوج میں بھی تقرر و تبادلے، تمام نظریں نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر پر۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں یاد ماضی کی جانب۔ کہتے ہیں ہر انسان کی شکل کے 7 انسان دنیا میں ہوتے ہیں۔ جب بھی میں یہ سنتا تھا تو ایک تجسس ہوتا تھا، لیکن آج مجھے ایک شخص کے 2 چہرے دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ واقعی یہ کہاوت سچی ہے۔ آپ خود دیکھیں آج کا یاد ماضی رانا ثناء اللہ کے نام۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے رانے کی بات مانی جائے۔ یقیناً اس شعبے بازی کو کسی بھی صورت سیاست کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور سابق وزیر مملکت زرتاج گل وزیر صاحبہ نے۔ زرتاج صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک جانب خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد حکومتی بوکھلاہٹ بھی، ان کی آنیاں جانیاں بھی، افراتفری بھی سب نے دیکھ لی، اور شروع میں تو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ گورنر رول لگا دیا جائے گا، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے، پھر ان آپشن سے بھی وہ پیچھے ہٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس سب میں خان صاحب نے مذاکرات کی ایک مشروط پیشکش کی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی پیشکش نہیں ہوئی۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور اس سب میں حکومت کہاں پر کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے؟ تھینک یو شہاب۔ میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے نا، خان صاحب تو وہ بہادر سچے اور کھرے لیڈر ہے کہ اساسینیشن اٹیمپٹ کے بعد بھی عوام کے اندر ہے۔ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر یا اساسینیشن اٹیمپٹ کا بہانہ بنا کر لندن تو نہیں بھاگے، وہ تو عوام میں کھڑے ہیں اور عوام کے لیے ہی لڑ رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان کے نمائندے ہم جیسے یا ان کی جو پروونشل گورنمنٹس ہے، وہ لبیک کہتے ہیں خان صاحب کی بات پہ، کیونکہ خان صاحب میں جو کانفیڈنس ہے، سچائی ہے، ایمانداری ہے، ان کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے 22 کروڑ عوام ہے اور 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑتے ہوئے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گا۔ مذاکرات کی پیشکش آج خان صاحب نے جو پروونشل اسمبلیز کے جو اسپیشلی کے پی کے ارکان سے جو انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے شاید میری
मुज़ाकरात को जो है उन्होंने गलत रंग दे दिया, या उनकी पेशकश को या मेरी पेशकश को उन्होंने गलत रंग दे दिया। और उसकी वजह भी ये है कि ये जो पीडीएम की जो हुकूमत है, इनके पास सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सिवाय गाली गलोच के, सिवाय थ्रेट करने के, सिवाय चादर और चार दीवारी पामाल करने के, इनके पास हुकूमत चलाने का, मुल्क की इकोनॉमी ठीक करने का, मुल्क की आवाम की सोचने का तो कोई मंसूबा नहीं है। अब खान साहब ने जो कहा है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान में एक जनरल इलेक्शन हो और वही वजीर आजम के मसनद के ऊपर बैठे जिसको अवाम अपने वोट के जरिए मुंतखब करे। और खान साहब को पता है कि मैं चूंकि सच्चा खरा लीडर हो तो अवाम मेरा साथ देगी, इसलिए खान साहब नई असम्बलियां तोड़ने से डरते हैं, न नए इलेक्शन से डरते हैं। अब जहां तक पीडीएम की बात है कि उनकी आड़ियां जाड़ियां हैं, जारी बात है वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब जब भी जनरल इलेक्शन होगा, पीडीएम के जमातों को और स्पेशली पीएमएलएन को अपने जो नुमाइंदे हैं, या तो वो उनको हिना भट्ट को टिकट देनी पड़ेगी, या अल्लाह रखा पेप्सी को उनको टिकट देनी पड़ेगी, या लाहौर के पावे को उनको टिकट देनी पड़ेगी। जारी बात है कोई सीरियस बंदा या बंदी पीडीएम को और स्पेशली पीएमएलएन की टिकट लेने को तो तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अवाम में ना उनकी पजीराई है, वो वोट का हक खो चुके हैं, वो अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं और मफादात का साथ देने वालों के लिए अब मुल्क के अंदर शऊर आ चुका है, इसलिए शऊर वाले तो अब इनको वोट नहीं देंगे। और जहां तक खान साहब की बात है, जब वो मैदान में निकलेंगे अल्लाह ताला उनको फातेह करार देगा वोट के जरिए। तो इसलिए ये जो पीडीएम हुकूमत कर ले, जितना मर्जी भाग ले, पाकिस्तान का ये नुकसान कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई का ये कोई नुकसान नहीं करे। पीटीआई का वोट बैंक बढ़ रहा है, पहले 1,70,00,000 वोट लिया था, इंशाल्लाह 22 करोड़ अवाम खान साहब के साथ है, कि उनको पता है कि हर मुसीबत में, हर आजमाइश में ये पाकिस्तानियों की आवाज उठाते हैं। फर्क देखें साहब, फर्क ये देखें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इन्होंने डबोई, इनके ऐशो इशरत पीडीएम वालों की खत्म नहीं हो रही। 100 के करीब ये लोग तर्जमान, मुशीर, वजीर पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर कर चुके हैं। और जो चाहे COP27 में शर्म एल शेख गए, चाहे बरतानिया गए, चाहे टर्की गए, आपके सामने है कि वो जो भिखारी वजीर आजम जो कहता है कि मैं भीख मांगने तो नहीं आया, पर शक्ल से ही भिखारी लगता हूं, उसने पाकिस्तान का मजाक ही उड़वाया है। उसने अपना मजाक ही उड़वाया है, क्योंकि वो इस मसनद के काबिल नहीं, अवाम की ताकत से नहीं आया। वो एक नमूना, एक मस्खरा है, लोग उसको सीरियस ही नहीं लेते। और जो वो हरकतें कर रहा होता है वो तो एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुका है। तो इस पार्टी का तो कोई टिकट नहीं लेने वाला है। जहां तक खान साहब की बात है, खान साहब को आप देखें कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की अभी भी फिक्र कर रहे हैं, वो अवाम की अभी भी फिक्र कर रहे हैं। उनको है कि पाकिस्तान के लायामल और पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता डिफॉल्ट के करीब है। आप खुद प्रोग्राम देख लें कि इनका वजीर खजाना जो इसहाक डार है, जिसको स्पेशल बुलाया गया था कि जी मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, हालांकि एब्सकॉन्डर है और उसको हवाई जहाज के जरिए वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में लाया गया, उसने तो खुद मिफ्ता इस्माइल के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। तमाशा बना हुआ इस वक्त मुल्क का तो वे की वाहिद सोल्यूशन है कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए। अगर ये डिले करेंगे तो ये मरते हैं, अगर ये करवाते हैं पीडीएम वाले तो ये मरते हैं, क्योंकि अवाम में इनकी ताकत पजीराई, वोट बैंक खत्म हो चुका है। जितना मर्जी ये अपने इस झूठे इक़्तिदार को तूल दे सकते हैं, दे ले, लेकिन इन द एंड इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ये चीज तो इस वक्त एक एस्टैब्लिश हो चुकी है। बल्कि खान साहब से हमारी मुलाकात थी, उसमें भी वो ये कह रहे थे कि कल इलेक्शंस हों, 4 महीने बाद हों, या अगले साल अक्टूबर में आप इलेक्शंस कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली इसका कोई नुकसान नहीं है। बल्कि अगर सिर्फ सियासी मफाद को देखा जाए तो शायद गवर्नमेंट मजीद एक्सपोज होती जाए अपनी जो नाअहलियां हैं, अपनी पॉलिसीज। लेकिन खान साहब लगातार 25 मई को देख लें, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में दाखिल ना होने का फैसला देख लें, और इस तरह के मजीद भी कुछ फैसले हैं सदर मुमलिकत के साथ मिलकर जब वो जमान पार्क आए, तो खान साहब लगातार अपने सियासी मफाद पर मुल्की मफाद को फौकियत दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस वक्त भी ये जो असम्बलियां डिसॉल्व करने का खान साहब ने एक ऐलान किया है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा वक्त आ रहा है, जैसे ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ दिन लगें, तो ये एक चांस है कि शायद अफामो तफहीम से मामलात हल हो जाएं और हुकूमत को, जो कि टस से मस होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन उसे ही कोई होश आ जाए।
نہیں دیکھیں شعب، جو ٹس سے مس حکومت نہیں ہو رہی نا، وہ اس لیے نہیں ہو رہی. دیکھیں میں عوام میں نکلتی ہوں، مجھ سے ایک ورکر بھی ناراض ہو جائے تو مجھے اس کی فکر پڑتی ہے. میرا ایک ووٹر بھی ناراض ہو جائے تو میں اس کو مناتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور اس کی وجہ یہ کہ میں نے تو مجھے تو پلیٹ میں رکھ کے کسی نے سیاست نہیں دینی نا. میں تو کسی کی نالائق نکٹو اولاد نہیں ہوں، نہ میں پرچی کے ذریعے آئی ہوں، نہ میں ویڈیو نازیبا ویڈیو کر کے بلیک میل کر کے آئی نہیں ہوں. میں تو ظاہری بات ہے خان صاحب کی ٹکٹ کے اوپر عوام کی پلس کے ذریعے 80,000 ووٹ لے کے ویڈیوز کو ہرا کے آئی ہوں. تو مجھے تو اپنے الیکشن کے اوپر، اپنے عوام کے اوپر نظر ہے، تو مجھے ان کا خوف بھی ہوتا ہے، مجھے ڈیولپمنٹ کی بھی فکر ہوتی ہے. تو ٹس سے مس کیا میری طبیعت کے اوپر یہ بات گراؤ گزرتی ہے کہ اگر میرا کوئی ورکر مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں فکر کرتی ہوں، کیونکہ میں نے عوام کی طاقت سے آنا ہے. تو جب یہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے، اصل مسئلہ یہ کہ زرداری صاحب نے ان سے کیا خوب بدلہ لیا ہے. زرداری صاحب نے پنجاب میں ان کے الہی بن کے جو رہی صحیح کسر تھی پی ڈی ایم کی، اسپیشلی پی ایم ایل این کی، وہ تو ختم کروا دی ہے. اب پی ایم ایل این کو اگر فکر نہیں اپنی سیاست کی اور وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے، تو زرداری تو ان کے ساتھ کھیل گیا ہے. مجھے یہ بتا دے صاحب کہ کسی کو اس وقت کیا سندھ میں فکر ہے کہ وہ جو اتنے لاکھوں افراد سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کسی نے اس کو مکان دیا، کسی نے اس کو ٹینٹ دیا، کسی نے اس کو راشن دیا، کسی نے ریہیبلیٹیشن کی؟ عوام تو ابھی بھی سندھ کے اندر مر رہی ہے، عوام تو ابھی بھی بھوک پیاس اور افلاس کا شکار ہے. اور جب ان کا جو وزیر خارجہ ہے اور جو زرداری ہے، وہ کہتا ہے، زرداری کے اپنے الفاظ ہے، زرداری کہتا ہے کہ میں تو بھونک بھونک کے تک گیا ہوں، اب عمران خان سے میں کس طرح مذاکرات کروں، اس کی زبان دیکھے. اور وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی اور جرنیل کے لیے فکر کر رہا تھا. سندھ کے پیسوں پہ جو عوام کو سندھ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگانا ہے، وہ آ کے وہ پنجاب میں ایک بکرا منڈی اور میلہ مویشیاں لگا دیتے ہیں. ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پنجاب کی حکومت کے لیے گرانے کے لیے ہمیں جی وہ چاہیے، آصف علی زرداری چاہیے، اور ایک زرداری سب پہ بھاری. اور بھائی پی ایم ایل این کو اوپر بھاری ہوگا، پی ڈی ایم کے اوپر بھاری ہوگا، اس میں شیخیاں مارنے کی کوئی بات نہیں ہے. کیا اس کا خاصہ ہے؟ خاصہ یہ کہ وہ ضمیر فروخت کر سکتا ہے، وہ میلہ مویشیاں انسانوں کی لگا سکتا ہے، ایم پی ایز ایم این ایس کی، ان کی ضمیر فروشی کرتا ہے، اور سندھ کے ڈیولپمنٹ کے پیسے وہ عوام کے بجائے جو ہے وہ ادھر لگاتا ہے. تو اگر پی ایم ایل این کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سندھ کے اندر تو ان کی نظر ہی نہیں جا رہی ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، زرداری کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور ادھر جتنے بھی فیصلے ہیں پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر، اس کا سارا ذمہ جو ہے وہ تو نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، پی ایم ایل این کے اوپر آ رہا ہے. تو اچھا ڈبو ہے، نہ ٹچ سے مسوں نہ کریں، لیکن ان دا اینڈ جو ایک پروونشل گورنمنٹ کی یا ایک پارلیمانی سسٹم کی جو 5 سال ہے، جب بھی الیکشن ہوگا تب بھی انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے. دیکھیں نا، خان صاحب نے للکارا ہے کہ نئے الیکشن کراؤ. جس کے پاس عوام کی طاقت ہوگی، عوام کا ووٹ ہوگا تو وہ للکار سکتا ہے نا. یہ کیوں ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہم جی یہ طریقہ کر لیں گے، وہ طریقہ کر لیں گے؟ تو طریقے کرنے سے تو سیاست نہیں بچتی نا، بند دروازوں کے پیچھے تو سیاست نہیں بنتی. بند دروازے والے تو چلے گئے، ایکسپوز ہو گئے عوام کے سامنے سب کچھ کہ کس کی طرف سے یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا. ان دا اینڈ تو سیاسی پارٹیوں کو، کارکنوں کو، لیڈران کو عوام کی عدالت میں جانا ہے، پھر عوام جو ان کا حشر کرے گی. اب تو کوئی ان کو شرم نہیں آتی کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ملک ڈیفالٹ کے اوپر چلا گیا ہے. دوسری طرف آپ ان کے عیش و عشرت دیکھیں. ہمیں جب انہوں نے ڈوبی ہوئی اکانومی دی تھی تو ہم اسے 10 بڑے ڈیم بھی بنوا رہے تھے، ہم ملٹری سونامی بھی لے کے چل رہے تھے، ہم احساس پروگرام بھی لے کر چل رہے تھے، ہم لوگ وہ جو ہے انصاف صحت کارڈ بھی 10 لاکھ کے ہیلتھ انشورنس بھی لے کر چل رہے تھے، یوتھ پروگرام بھی لے کر چل رہے تھے اسی ڈوبی ہوئی اکانومی سے. ان کی ڈوبی ہوئی اکانومی میں اگر کوئی مشکل ہے، اگر کوئی مشکل فیصلے ہے تو وہ عوام کے لیے ہے، اور اگر انہوں نے عیش و عشرت کرنی ہے تو وہ پھر ان کے حکمرانوں کے لیے. تو کتنی دیر یہ بچائیں گے؟ نہ ٹس سے مس، لیکن ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. ان کے پاس اب عوام میں جانے کا کوئی جواز نہیں ہے، عوام ان کو پسند نہیں کرتی ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا عوام میں نکلنا. کریں یہ اٹلی کی سیریں، کریں یہ باہر کی یورپ کی سیریں، کریں یہ لوگ جس کے پلیٹلیٹس گر جاتے تھے ہر 2 منٹ کے بعد، نیشنل مسئلہ بن جاتا تھا کہ جی پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، شریانیں دماغ کی پھٹ گئی ہیں، 4 دن میں اس کی زندگی اور موت کی آپ گارنٹی دیں. وہ تو اب یورپ کی سیریں کر رہا ہے. مبارک ہو پی ایم ایل این کو، کس قدر بگوڑا لیڈر ہے کہ 3 سال ہو گئے اس نے پاکستان کا رخ نہیں کیا. بڑا انقلابی لیڈر اس کو کہہ دیتے. دیکھ لیا ہم نے اس کا انقلاب، جو یورپ میں اس وقت انقلاب اس نے برپا کیا ہوا ہے. جی یہ تو دیکھیں زرتاج گل صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمارے نظام انصاف اور ہماری قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ پاکستان نہیں آیا جا سکتا، لیکن وہ کاؤ بوائے ہیٹ پہن کے وہ وہاں پر سٹیکس انجوائے کر سکتے ہیں. اور غالباً وہ جو
स्टेक्स खा रहे हैं, बीफ स्टेक्स एंजॉय कर रहे हैं, वो भी डॉक्टर अदनान साहब ने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिए होंगे कि आपको स्पेशली इटली जाना होगा। अब ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है और सब कुछ कौम के सामने है। गवर्नमेंट के लिए इस वक्त ऐसे लग रहा है कि आगे कुआं पीछे खाई है। वो आज भी इंतखाबात कराएं तो फंसते हैं, वो साल बाद क्या 2 साल बाद भी करवाएं तो फंसते हैं, बल्कि शायद ज़्यादा फंस जाएं क्योंकि मज़ीद एक्सपोज हो जाए उनकी जो कॉम्पिटेंस है, क्योंकि वो एक डार इकोनॉमिक्स और वो सारा जो कौम को बताया जाता था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि बैकडोर राब्ते भी हैं, पॉलिटिकल अप्रोच में भी फ़र्क आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और खान साहब को भी असम्बलियाँ तहलील करने से रोकने की कुछ कोशिशें हो रही हैं। तो क्या ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, इसके चांसेस हैं, और क्या खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने से सिर्फ इसी सूरत में रुकेंगे कि इंतखाबात का ऐलान हो जाए? देखिए शहाब, सिंपल बात ये कि आप पिछले 8 महीने में जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तानियों के साथ की गई, जमीन उनको पर तंग की गई, आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। जो मिडिल क्लास थे वो बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे रह गए हैं, और गुर्बत में जो लोग थे वो इस वक्त खुदकुशियां कर रहे हैं। और पीडीएम की 14 जमातें आपस में जो है वजीर मुशीरों के बंदर बांट करके उनके तो बाहर के सफर और ऐशो इशरत ही खत्म नहीं हो रही है। वहां पे जब अवाम के ऊपर सख्त वक्त आया तो वहां पे क्या हुआ कि चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई, जो मीडिया के एंकर पर्सन थे उनकी जबान बंद करने के लिए नोटिस दिए गए, किसी को गोली मार दी गई, किसी को शहीद कर दिया गया, किसी के प्रोग्राम बंद कर दिए गए, किसी के चैनल को जो है मालिक को जो है वो ब्लैकमेल किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी हक की आवाज लोग बुलंद करते रहे खान साहब के साथ, क्योंकि कौम बहुत ज्यादा बाशऊर हो चुकी है। वहां पे खान साहब ने जितने भी फैसले किए, खान साहब ने कभी भी सबर का दामन नहीं छोड़ा। खान साहब ने एज ए स्टेट्समैन, खान साहब ने एज ए पाकिस्तानी और इंतहाई जिसको कहते हैं कि ज़हीन तरीन लीडर होने का सबूत दिया कि जिन्होंने अपने मफाद को नहीं देखा, पार्टी के मफाद को नहीं देखा, उन्होंने कौम के मफाद को देखा, और कौम के वसी तर मफाद में उनके जितने भी फैसले अगर आप देखें उसकी दुनिया तारीफ करती है। ये एक विजनरी लीडर का काम होता है। वहां पे हमारे लीडर किससे क्या बातचीत करते हैं, किसके साथ वो देखिए ना, डिमांड तो एक ही है, चाहे वो मीटिंग के अंदर करे, चाहे वो इंडिपेंडेंट फोरम के ऊपर करे, चाहे वो पॉलिटिकल रहनुमाओं के साथ बैठ के करे, एक ही डिमांड है, और वो बड़ी जायज आईनी कानूनी उनकी डिमांड है कि मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये जो पीडीएम का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, इनके पास कोई विजन नहीं है अपने मफाद के अलावा। इन्होंने बल्कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे के ऊपर पहुंचा दिया, और ये इनके अपने वजीर खजाना कह रहे हैं सागदार हम नहीं कर रहे, और मिफ्ता इस्माइल जो पिछले थे वो कह रहे हैं। वहां पे मैं ये समझती हूँ कि खान साहब की जो ये ख्वाहिश नहीं है, ये डिमांड है मुल्क की कि जनरल इलेक्शन ही उसका हल होना चाहिए। अब कब इस्तीफे देते हैं, मैं तो पहले इस्तीफा दे चुकी हूँ, हम तो पहले 123 जो है मैंने हम तो इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि जो पार्टी का ओहदा होता है, या आप एमएनए होते हैं, एमपीए होते हैं, या पार्लिमानी सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, हुकूमत का आप हिस्सा होते हैं, ये आपको जो टाइटल मिलते हैं ये आपकी पार्टी की बदौलत होते हैं। ये हक होता है जब आपका लीडर कहें कि जी आप इस्तीफा दे दें। कौम की खातिर इस्तीफा हमने पहले दिए हुए है, तो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बड़ा खुशाइंद है। आप महमूद खान जो सीएम के पीके, उनका आप बयान देख लें, आप परवेज इलाही साहब का जो सीएम पंजाब है, आप उनका बयान देख लें, लब्बैक कह रहे हैं, वो खान साहब की बात है, बड़ा खुशाइंद है, और वो कह रहे हैं कि ये आपकी इमानत है, हम वफा करने वाले लोग हैं। तो जब खान साहब ये कहेंगे हम ये इस्तीफे दे देंगे। बाकी शाहब जो एक बड़ी जो छोटी बैठक होती है खान साहब के साथ, जिसमें 4-5 सीनियर हमारे लीडरान खान साहब के साथ बैठते हैं, शाहब जारी बात है मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, आई कैन नॉट टेल यू द इनसाइड वो कि वो उन्होंने किस दिन और क्या करना है, लेकिन ये कि अवाम की डिमांड यही है, हमारी पार्टी की भी डिमांड यही है। बिल्कुल, और सब ये कहते हैं कि हमारी उन किचन कैबिनेट के लोगों से बात भी हो तो बहुत से ऐसे कार्ड्स भी हैं खान साहब के जो उन्हें भी खान साहब ने नहीं दिखाए होते, और इस वक्त बिल्कुल बड़ी अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां पर लेना एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी इस्तीफों पर।
जरताज गुल साहिबा, जिस तरह से कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और गवर्नमेंट ने उसका एक हैक ढूंढ लिया, लूप होल ढूंढ लिया, स्पीकर को इस्तेमाल किया गया, फिर सेलेक्टिव इस्तीफे, अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवा देंगे। शुरू में वैसे कहते थे कि असम्बली तहलील ही नहीं होने देंगे, लेकिन जब देखा कि ये गवर्नर राज वाला और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला जो हथियार है वो इस्तेमाल करने से पहले ही ठुस हो गया, तो अब कहते हैं कि हम ये सब कर देंगे। तो क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है अगर तो हुकूमत ज्यादा ही डट जाती है और कहती है कि ठीक है जी हम पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा देते हैं, जो कि ऐसा हुआ नहीं कभी। तो मुल्क इस वक्त इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और जारी बात है सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है अगर हुकूमत इस तरह का कोई एडवेंचर करती है? तो देखिए शाहब, आप पिछले 8 महीनों से देखें ना, तो मुल्क में जो एडवेंचर हो रहा है ना, जो इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो इस सस्पेंड है पाकिस्तान के अंदर। किसी की नाजेबा वीडियो बना के किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, किसी को उठवा लिया जाता है, किसके ऊपर 70-72 FIR हो जाती हैं, खवातीन को चादर और चार दीवारी को पामाल कर दिया जाता है, सियासी लीडरान को जो है उनको पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाती है, मीडिया पर्सनल को उठा लिया जाता है। तो कुछ भी इस वक्त हो सकता है, क्योंकि ये जो PDM का टोला है ये तो न कानून को मानते हैं, न ये आइन को मानते हैं, न ये किसी इंसानी हकूक को मानते हैं, न ये सियासत को, वोट को मानते हैं। ये वोट के जरिए तो आए नहीं, ये बंद दरवाजों के पीछे रेजिम चेंज के जरिए जमीर फरोशी करके किसी का लायकार बन के इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं। तो क्या पाकिस्तान की तारीख में तो पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना कि जो इलेक्टेड हुकूमत हो, जिसके पास वोट ज्यादा हो, आप उसको निकाल के बाहर कर दें और जिनके पास सीटें कम हो उसको आप वजीर आजम बना दें। ये तो कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तो इस वक्त हर वो अनहोनी हो रही है जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। लेकिन कहते हैं ना अल्लाह ताला की रस्सी है, कब तक दराज होगी। तो ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपने ज़ाती मफाद की खातिर जितना मर्जी खींच लें, इन द एंड सोल्यूशन तो यही है कि इनको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। जहां तक ये अंदर से ये डरे हुए हैं, इनकी एक मुझे कोई प्रॉपर जवाब देने दें। 25 किलोमीटर पे एक कातिल उसको बिठाया हुआ इंटीरियर मिनिस्टर को, या वो है या इक्का दुक्का कोई मिनिस्टर साथ बैठ जाता है, मिनिस्टर के पोर्टफोलियो का भी नहीं पता। ये पहली दौर हुकूमत है जिसमें OSD मिनिस्टर मौजूद है, क्योंकि लूट के खाना है ना, ऐश करनी है, झंडे लगाने हैं, बाहर की सैरें करनी है अपनी फैमिली समेत, अपने नौकरों समेत। तो OSD मिनिस्टर्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो इक्का दुक्का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर कर लेते हैं। मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब खान साहब ने इनको चैलेंज किया और परवेज इलाही साहब ने फरमा दिया कि मैं लब्बैक कहता हूं कि जब खान साहब कहेंगे मैं पंजाब असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दूंगा, तो मेरा सवाल ये कि जिसको पिछले दिनों जबरदस्ती ऐवान इकबाल के जरिए जिसको ऐवान इकबाल में हलफ लेके वजीर आला बनाया हुआ था, एक मुर्गी चोर को, और जब से वो वजीर आला नहीं रहा, जब हमने इसको बाई इलेक्शन के अंदर बदतरीन शिकस्त दी इन 14 जमातों को और उस मुर्गी चोर को, उसका कोई बयान है? वो इस वक्त पार्लिमानी लीडर है, इनका अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, कोई बयान है उसका? कोई इसका मतलब तो ये है ना कि खान साहब के चैलेंज को उन्होंने कबूल ही नहीं किया। तो ये आपस में कोई इनकी राय नहीं मिलती, कोई इनके पास कोई जवाब है ही नहीं खान साहब के चैलेंज का। इनके पास जवाब ये करा लो, या मौलाना फजल रहमान को खवातीन के ऊपर हमले करवाने के लिए इस्तेमाल करो, फतवे जारी कर दो। इसके अलावा इनके पास, और ये जानबूझ के करते हैं, जानबूझ के ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ के ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि लोगों की नजर महंगाई की तरफ ना जाए, इंसानी हकूक की जो पामाली हो रही है उसकी तरफ ना जाए, किसकी नाजेबा वीडियो इस्तेमाल करके किसको उठाया जा रहा है, किसके ऊपर 72 FIR और गद्दारी के मुकदमे किए जा रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़ने के ऊपर मजबूर हो गए, उसकी तरफ न जाएं। अवाम जो वो खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर है, उसकी तरफ ना जाएं। फेडरेशन के पास सुबह को देने के लिए पैसे ही नहीं है, यानी कि सुबह पंजाब को और KPK को उन्होंने पैसे ही नहीं देने हैं, इनके पास पैसे नहीं है और ये पैसे ले रहे हैं अपने आप को इशरत के लिए। जब ये भिखारी वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं लेकर आता, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट है। कभी जो है वो मलका बरतानिया के जनाजे को कंधा देने चला जाता है। बंदा पूछे, जब तुम लोग की वालदा फौत हुई थी, तुम लोग के घर में जब जनाजे हुए थे, तब तक तुम लोगों ने वो पार्सल करवा दिए थे, मलका बरतानिया के जनाजे को तुम लोग क्या कंधा देना है। और फिर इसी तरह जब टर्की जाता है, टर्की में आपके सामने
या COP27 के ऊपर गया, सैलाब में मुल्क डूबा हुआ है, ऐशी इशरत के लिए वहां पे गए हुए हैं, और वहां पे वो तमाम जो लीडरान खड़े थे, वहां पे वो शायद कैंडी क्रश खेल रहा था, किसी ने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, मोबाइल के ऊपर वो कोई मैसेजेस कर रहा था, और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उसकी बात होती है, वो तो बिल्कुल ही शर्मिंदगी का बायस है। कभी उल्टे फौजियों को सलाम कर देता है किसी और मुल्क के अंदर, उसको यही नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या है, या किसी भी इंटरनेशनल लीडर का हाथ पकड़ के जो उसके हाथ से वो घसीट रहा होता है, अगला जो है वो बेचारा जो किसी मुल्क का वज़ीर आज़म सदर, उसको जान छुड़ानी इससे मुश्किल हो जाती है। या टर्की में जबरदस्ती वेटर को खींच के अपने साथ, नहीं मुझे पता है कि तुम मेरे जो है वो फैन हो, जबरदस्ती उनके साथ तस्वीर उतरवा रहा था। तो ये करना होता है, ये इस मुल्क के साथ करना है। तो इनके आपस में भी ये बुखलाए हुए हैं, इनके आपस में जो स्टेटमेंट है वो मिलती नहीं है। इन द एंड जितना मर्जी ये भाग ले, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी के अंदर है कि जो अवाम फैसला करे, जमहूर फैसला करे, वही जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए, वही पाकिस्तान की माशी पॉलिसी लेकर आए, वही पाकिस्तान की जो पिछली जो अच्छे काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, जैसे हम 10 बड़े डैम बनवा रहे थे, जिस तरह एहसास प्रोग्राम चल रहा था, जिस तरह यूथ प्रोग्राम चल रहा था, जिस तरह से इंसाफ सेहत कार्ड चल रहा था, पेन पेनल्टी सुनामी चल रहा था, उसको कंटिन्यू करवाए। जी बिल्कुल। जरताज गुल साहिबा, एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें भी हो रही हैं, और जारी बात है कि NRO 2 की जो तकमील है वो गालिबन नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनके केसेस खत्म होने से ही होनी है। तो इस सब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी होगी? क्योंकि दूसरी जानिब जरदारी साहब कहते हैं कि खान साहब को हमने नैब से गिरफ्तार करवा देना है और ये सब भी हो जाना है। ये पॉसिबल हो सकेगा? देखिए, एक और एब्सकॉन्डर आ जाएगा, एक और भगोड़ा अगर आ जाएगा। वैसे तो मैं ये समझती हूँ कि इस भगोड़े ने पाकिस्तान आना ही नहीं है। 3 साल पहले दवाई लेने गया था, 4 हफ्तों की छुट्टी पे गया था, बहाना बना के गया था अपनी इसका प्लेटलेट्स का, और या पता नहीं कोई शरियाने उसकी दिमागी फट रही थी। तो उसके बाद 3 साल से जो है, कमाल है कि 3 साल से वो पाकिस्तान नहीं आ सका, पाकिस्तान सैलाब में डूब गया, बलोचिस्तान सिंध में तबाही मचा दी, ये शख्स यहाँ पे नहीं आया। अवाम बड़ा इनकलाबी, जब इनको ये कह रहे थे कि ये बड़ा इनकलाबी लीडर है, अवाम इसको देख रहे थे, लेकिन ये अपने कारकुनान के पास नहीं आया। तो ये तो मुश्किल है कि, और इसको अपने भाई के ऊपर भी वैसे एतबार नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसको शहबाज शरीफ के ऊपर एतबार नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ जैसे कुर्सी से हटा, भाई पर एतबार तो तब हो नवाज शरीफ साहब को आपके पास कोई इख्तियार हो। गालिबन लगता तो ऐसे है कि भाई से ज्यादा बा इख्तियार तो लंदन एवन फील्ड में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब के पास है, जो कि टेक्निकली मुल्क से भागे हुए हैं लेकिन एक सुपर प्राइम मिनिस्टर का किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वक्त होगा पोस्टमार्टम का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वक्त हुआ है पोस्टमार्टम का। नाज़रीन किराम, इसहाक डार की वापसी पर कई बड़े तज्जियाकारों समेत पूरी PDM ने बहुत तालियां पीटी थीं कि अब पाकिस्तान की मईशत ने संभल जाना है, अवाम को रिलीफ मिलना है, महंगाई ने नीचे आना है, और सबसे बढ़कर डार साहब को जिस चीज का माहिर समझा जाता था वो डॉलर कंट्रोल करना था। तो कहने वाले तो ये भी कह रहे थे कि डार के आते ही डॉलर घबरा कर नीचे आ गया है। खुद इसहाक डार साहब ने यह दावा किया था कि वो डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाएंगे। देखिए इसहाक डार साहब ने क्या कहा। ये थे जनाब इसहाक डार साहब, जिन्होंने वजारत खजाना का ओहदा संभालते ही बड़े से बड़े दावे करना शुरू कर दिए। ये कल के इसहाक डार साहब का बयान था। आज वाले इसहाक डार साहब डॉलर 200 रुपए से नीचे लाने के बयान से पीछे हट चुके हैं। कराची में मीडिया से बात करते हुए इसहाक डार ने कहा कि डॉलर का रेट फिक्स नहीं कर सकते। अपने ही बयानात की नफी करना मौजूदा हुकूमत के लिए कोई नया काम नहीं। ये तवातर के साथ बयानात देते हैं और फिर खुद ही अपने बयानात के खिलाफ अमल करते हैं। जैसा कि मरियम बयान दिया था कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत $1 भी कम हुई तो वो फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ देंगे। हैव अ लुक। तो आज आलमी मार्केट में तेल की कीमत ग्याह की कम तरीन सतह पर यानी कि $75 फी बैरल है, और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई बल्कि इनको बरकरार रखने का फैसला किया गया है।
इसहाक साहब क्या फरमाते हैं, खुद देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है कि जब दुनिया में पेट्रोल की कीमत $126 फी बैरल थी तो कौम को यही पेट्रोल 149 रुपए फी लीटर मिलता। वो दौर था इमरान खान का, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुतालबा करते थे कि पेट्रोल 70 रुपए फी लीटर बेचो, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाया करते थे। जी, ये थे शहबाज शरीफ, ऑपोजिशन लीडर, जो इमरान खान से 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल अवाम को देने का मुतालबा उस वक्त कर रहे थे जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $126 फी बैरल थी। इमरान खान दौरे हुकूमत में पेट्रोल मिल रहा था 149 रुपए फी लीटर, और आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पेट्रोल की कीमत $75 फी बैरल है, और आज पेट्रोल मिल रहा है 225 रुपए फी लीटर। ये हालात हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के। किसी एक बयान पर ये लोग कायम नहीं रह सके। कोई एक दावा इन 7 महीनों में सच्चा साबित नहीं हो सका। किसी एक बात में इनकी वजन नहीं। आज जो बात कर रहे हैं कल इसकी मुखालफत करेंगे, और इसी तरह ये हुकूमत अवाम में अपनी हैसियत और अहमियत मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर है। सोचना होगा, सबको सोचना होगा, क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं। जाती मफादात को एक तरफ रखना होगा, वरना कुछ भी किसी के हाथ ना आएगा। मखदूम साहब को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। देखें, ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था, और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है। ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।